اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو آج ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ عثمان بھائی آئے ہیں۔ تو آج کا ٹاپک بہت ہی آج کے معاشرے میں ینگ جوان لڑکے اور ہماری لڑکیاں عورتیں ان کے لیے ہے پردہ کیا چیز ہے، پردے کے بارے میں اور انسانوں کی نظر کے بارے میں، نوجوانوں کی نظر کے بارے میں کہ کیسی نظر ہے۔ تو جی عثمان بھائی، آج کل کے عورتیں جس چیز کو لائٹ لیتی ہیں، پردے کے بارے میں آپ کچھ بتانا چاہیں؟ جی السلام علیکم، میں امید کرتا ہوں سارے بھائی ٹھیک ہیں۔ یہ میرے عثمان بھائی ہیں، الحمدللہ انہوں نے یہ موقع دیا ہمیں یہ پردے کے اوپر۔ ٹھیک ہے، معاشرہ جیسے چل رہا ہے، آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پردہ کیا چیز ہے اور ہماری نظر، انسان کی نظر، مرد کی نظر جو ہوتی ہے یہ کیسے غلط ہوتی ہے۔ اکثر یہ معاشرے میں بولا جاتا ہے کہ کوئی لڑکی ہے نا، وہ پیچھے سے بھی آ کر کسی کو ٹھوک دے نا گاڑی، تو وہ غلطی آگے والے کی، چاہے وہ کھڑا ہو سائڈ پہ ہو۔ لڑکا مطلب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لڑکی کو ہم سچا قرار دیتے ہیں۔ ہاں بالکل، ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی نیگیٹیوٹی ہے نا، ہم سوچتے ہیں کہ یار وہ شریف لڑکی ہے، اور کچھ لوگ اس لیے لڑکی کو کہتے ہیں کہ یار کتنی خوبصورت ہے، ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں، کیا پتا ہمارا مطلب سو مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ اور یہ پردہ سب سے ضروری چیز پڑتا ہے معاشرے کے اندر، اور آنے والے وقت میں اور جاتے ہوئے وقت میں بھی اور چلتا ہوا وقت بھی جو ہے نا، ماضی، مستقبل اور حال جو ہے، اس کے اندر سب سے ضروری چیز ہے پردہ، اور جو آج کے دور میں بالکل نہیں کیا جا رہا۔ اور سب سے زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹک ٹاک، یہ وہ، اور یقین مانو یہ جو ٹک ٹاک لڑکیاں چلاتی ہیں نا، یہ پردے فحاشی ویڈیوز بناتی ہیں، اور یہ جو اپنے جسم کی نمائش کراتی ہیں، ان کے گھروں میں جا کر دیکھ لو، ان کے خامد، ان کے بھائی، ان کے بیٹے، یہ ان سے کبھی بھی پیار سے بات نہیں کریں گے۔ یہ جب بھی کریں گے، ہاں ان کے پیدا ہونے والے بچے بھی ان کو اوئے کر کے بولیں گے۔ اور جو ایک عورت، وہ پرانے دور کے اندر نا، وہ آپ پرانے دور کے بچوں کو دیکھو اور آج کے بچوں کو دیکھو فرقان بھائی، آج کے بچے ماں باپ کو بولیں گے تو اور تیرے، ایسے کر کے بولیں گے، نہیں کرتا، یہ کرتا۔ اور پرانے جی امی جی، جی ماما، جی جی ایسے بولیں گے، جی اچھا کر کے بولیں، جی ایسے، ٹھیک ہے۔ اور آج کے بچے مجھ سے نہیں ہوگا، اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ ہے یہ جو ہم بستری کرتے ہیں نا لوگ، یہ لائٹ چلا کر کرتے ہیں۔ ایک عورت تھی تو اس کے ہاں نا، اس کی شادی ہوئی، تو اس نے، اس کا مرد جو تھا نا، اس کو کبھی وہ جیسے بھی ہم بستری میں ہزاروں باتیں ہوتی ہیں، تو اس عورت نے کہا کہ ایک بچہ میری مرضی سے پیدا کرنا ہے، باقی جتنے ہو سکے تو اپنی مرضی سے پیدا کرنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے بولا ایک بچہ میری مرضی سے پیدا کر، تو جو بولے گا پھر میں ویسا کروں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ کیسے کرنا؟ اس نے کہا کہ تو باوضو ہو کر میرے پاس آنا ہے، اور میرے ساتھ جب ہم بستری کرنی ہے نا، تو جسم کا پورا حصہ ڈھکا ہونا چاہیے، اور جسم کا اتنا حصہ ننگا ہونا چاہیے جتنے میں ہم بستری ہو سکے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لائٹ بند، اس نے ویسے ہی کیا۔ کچھ دیر گزری، وہ بچہ پیدا ہو گیا، تو آہستہ آہستہ اور بچے بھی پیدا ہو گئے۔ کچھ سال گزرے، جب جوان ہوئے تو اس عورت نے کہا، وہ بچہ تو جو تھا نا، وہ معصوم سا اور سیدھا سا، آرام سے جاتا، آرام سے آنا، اس کا گھر رہنا سہنا ایک سادہ انسان جیسا، ایک جیسے بالکل سادہ انسان ہوتا ہے نا، جیسے سمجھ لے آج کے دور میں جو نظر گرا کر چلتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں یار کتنا شریف ہے، وہ بالکل شریف۔ اور ایک بیٹا تھا جو وہ والد کے کندھے کے ساتھ کندھا ملاتا تھا، وہ عورت کو ہر روز کہتا تھا، دیکھ جو جس کا تو نے پیدا کیا تھا نا، وہ دیکھ لے سر بھی نہیں اٹھاتا، اور میرا بیٹا دیکھ میرے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر چلتا ہے اور سینہ تان کے چلتا ہے۔ اس نے کہا وقت آئے گا میں تجھے دکھاؤں گی۔ آہستہ آہستہ تھوڑے سے جوان ہو، ایک دن وہ اتولا ہوا۔ مرد ایک ایسی چیز ہے، جب وہ اتولا ہو جاتا ہے نا، جس کو ہم جلد بازی کہتے ہیں، جلد بازی میں وہ کہتے ہیں جو بھی ہونا ہے ابھی ہونا ہے، جذباتی ہو جاتا ہے، جذبات میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ آج دکھا مجھے وہ اس بچے میں کیا خاصیت ہے، جو کہتی تھی میرا بچہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ آج ایک گھر کے اندر پردہ لگاؤ، اس پردے کے پچھلی سائڈ پر رکھو، مجھے مارنا نہیں، دیوار کے ساتھ اپنی جوتی اتار کے دیوار کو مارنی، اور میں شور ڈالوں گی کہ مجھے مار رہا ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایسے ہی کروں گی، اور دونوں بیٹوں کو بلانا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب وہ اس کا پہلا بیٹا آیا نا، جو مرد کا، جس کو مرد اپنا بیٹا کہتا تھا، یہ میرے کندھے کے ساتھ کندھا ملاتا ہے، تو وہ جب آیا تو اس نے کہا، اس نے نا دیوار آگے پردہ کیا اور دیوار کو زور زور سے نا مارنا شروع کر دیا۔ وہ بیٹا آیا، اس نے باپ کو گالیاں دینا، میری ماں کو کیوں مار رہا ہے، کیوں ایسا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے یہ، کیوں تجھے شرم نہیں ہے؟
उसने दरवाज़ा उसने ऐसा किया कि दरवाज़ा को पर्दा हटाया और अपने बाप के ना गले पड़ गया, उसको पकड़ा। उसने बोला, थोड़ी देर उसने सब्र किया, उसने कहा ठीक है मैं मार नहीं था, ऐसे ही था, तू अपनी माँ से कितना प्यार करता है। वो बैठा ना खामोश होकर, उसने अपने बाप का गिरेबान पकड़ लिया। तो उसने कहा अब दूसरे बेटे की, जब तूने औरत को कहा जो तूने कहा था ना मेरी मर्जी से हो, अब उसको आजमा। जब उसको आजमाया गया ना तो बाप ना जोर जोर से मारी जा रहा है, माँ ये कह रही है अब मुझे टांगे ना मार, मुक्के ना मार, मुझे जूते ना मार। तो वो ना नहीं, बच्चा हिल ही नहीं रहा, बच्चा अपनी जगह पर बैठा हुआ है, वो हिल ही नहीं रहा। तो वो जब थोड़ी देर के बाद उसने कहा देखा जिसको तूने पैदा किया वो तेरी एक बात नहीं सुन रहा, तू कैसे कह रही है कि वो तेरा वफादार है। उसने बोला इन दोनों को इकट्ठा किया। उसने बोला हाँ भाई बेटा, तू अपनी माँ का मतलब इतना हम साथ दिया कि तू अपनी माँ को बचाने के लिए मेरे गला पकड़ गिरेबान पकड़ लिया। उसने बोला कि अगर तू मेरी माँ को कुछ करता मैं तुझे मार भी देता। तो उसने बोला तो भाई यार ये बच्चा देख, उसको पास बैठे कह रहे थे, कहता देख मेरा बच्चा कितना वफादार है तेरा। उसने बोला अच्छा। उसने वो दूसरे को पूछा जिसको वो मतलब औरत की मर्जी से पैदा किया। उसने बोला हाँ भाई तू क्यों नहीं आया। वो कहता है कि मियाँ और बीवी के मामले में तीसरे इंसान को दाखिल ही नहीं होना चाहिए। उसने बोला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पर ये कहने आए थे कि या रसूल अल्लाह जब मियाँ और बीवी लड़ रहे हों तो इनके अंदर तीसरा इंसान जैसे ही लड़ाई के अंदर आता है इनके अंदर हमेशा इख्तिलाफ ज़्यादा बढ़ते हैं, और मैं आपकी इज्जत की खातिर नहीं आया, ये दोनों मियाँ बीवी का मामला था और ये दोनों तुमने खुद आपस में जो था ना इसको ख़त्म करना था, तो मैं इसलिए नहीं आया। और पर्दा इतना देखो कि एक पर्दे के अंदर ये काम किया हुआ इतना अच्छा काम है कि आने वाली नस्लें भी साफ़ सुथरी होती हैं। तो पुरानी नस्लें पुराने लोगों को देखो बड़े बाअदब बाहया होंगे, और ये जो आने वाली नस्लें हैं ये आगे से ऐसे जवाब देते हैं कि जैसे बचपन से माँ के पेट के अंदर से जवाब लेकर आए हैं। और हमारे मुआशरे के अंदर अगर हमारा जिस्म है ना इसके ऊपर ऐसा कपड़ा पहना है तो खुला तो हमें कुछ भी नहीं पता चलेगा, और अगर हम टाइट पैंट पहनेंगे टाइट हमारे जिस्म की नुमाइश होगी, कुछ देखेंगे ये देख इसका जिस्म कैसे नजर आ रहा है। तो ये लिहाजा ये सबसे ज़रूरी बात है लड़कियों की, बाजार में चलो बुर्खा ऐसा पहना होगा कि जिस्म के साथ चिमड़ा होगा, और ऐसा लिबास मर्द को नहीं जाए। ये औरतें पहन कर चलती हैं, फिर पता क्या कहती हैं, मर्द हमें गंदी नज़र से देखते हैं। भाई मर्द तो देखेगा, और ये जो मेरे भाई कहते हैं कि यार एक बार देखने में सवाब मिलता है, नहीं यार कौन कहता है सवाब मिलता है। और बाद में कहते हैं अल्लाह की बनाई चीज़ को देखो, भाई अल्लाह ने तो मस्जिद भी बनाई है, अल्लाह ने कुरान बनाया, अल्लाह ने कुरान बनाया, अल्लाह ने मस्जिद बनाई है, अल्लाह ने अपने वलियों के मज़ारात बनाए हैं, उनको देखो। अल्लाह ने अपनी राह बनाई है, मस्जिद की तरफ जाता हुआ रास्ता है, उसको देखो, क्यों नहीं देखते। भाई बस यही औरत की खूबसूरती को देखकर कहना अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है। जानवर को देखो, और भी चीज़ें हैं, अल्लाह की बनाई हुई दरख्त है कि उसके अंदर फल कैसे आता है और पूरे मुकर्रर टाइम पर आता है, कैसे आता है। और लिहाजा मेहरबानी फरमा कर ये जो औरतों के ऊपर फिर कमेंट करते हैं और उसके ऊपर जो कमेंट करते हैं ना, तो फिर ये मत सोचो कि उसकी माँ के उसकी बहन के ऊपर कमेंट नहीं किए जा रहे, लाजमी है। एक चौधरी था तो उसका बेटा ना, गरीब की बेटी थी, वो कॉलेज जाती थी, तो चौधरी का बेटा जो था ना उसको रोज़ तंग करता था। तो उसने एक दिन कहा कि मुझे ऐसा ना किया कर, मैं गरीब बाप की बेटी हूँ तो मेरे साथ ऐसा ना किया कर। जो मैंने कहा कि उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी, तो अगर नहीं भी समझ आई तो कम अज़ कम थोड़ा सा एक बात पर अमल कर लो। मेरे भाई लोग जो हैं, मेरी बहनें जो हैं, सिर्फ एक बात पर अमल करें। मेरी बहनें अगर पर्दा करके बाजार में निकलेंगी ना, और यकीन मानो कसम उस पाक ज़ात की, अल्लाह की कसम है कि वो खुद ब खुद ही कोई भी उनको छेड़ेगा नहीं। अगर हमने मोबाइल पकड़ा है, मोबाइल के ऊपर कवर है, मोबाइल के ऊपर कवर है, फिर उसके ऊपर ग्लास है, वो ज़मीन पर गिरे तो हमें पता क्या होता है, हमारे दिल को तसल्ली होती है, यार कोई टेंशन नहीं है, इसका ग्लास टूटा होगा या इसका कवर है, अभी वो उसको सेव कर लेगा। तो अगर इसी तरह हम बुर्का पहना है, और अल्लाह की कसम है और अल्लाह की ज़ात ने हुक्म फरमाया है, और पर्दे का हुक्म, ये जो औरतें कहती हैं ना ज़हन साफ होना चाहिए, अम्मा फातिमा, हज़रत फातिमा तो ज़हरा से ज़्यादा ज़हन तो किसी औरत का साफ नहीं है। बिल्कुल, उनको भी ऐसे ही है, उनसे ज़्यादा तो ज़हन किसी का साफ नहीं है ना। नेक औरत कोई भी नहीं है उस पूरी दुनिया में ना आ सकेगी और ना आई है।
जब मुबाहला होने लगा था ना, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ख़ानदान को साथ लेकर गए थे। ये बहुत ज़्यादा रवायात में आता है और बहुत मशहूर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नीचे पाँव है, ऊपर हज़रत फातिमा तो ज़हरा और ऊपर हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का। ज़मीन कहती है मुझे ज़मीन फातिमा का पाँव नहीं नज़र आ रहा, और आसमान कहता है ऊपर, ज़मीन कहती है नीचे मोहम्मद का पाँव है, और आसमान कहता है ऊपर अली का पाँव है, फातिमा का पाँव किधर है। इतना पर्दे का एहतमाम किया जाता था। और आज के दौर में कहते हैं सोच साफ, उनसे ज़्यादा तो सोच किसी की साफ नहीं ना हो सकती। तो मेहरबानी फरमा कर अपनी सोच को भी साफ करो। ज़रूरी नहीं कि सोच ही साफ हो, अपने जिस्म को भी साफ करना चाहिए। अपने ऊपर एक ऐसा लिबास पहनो कि जिसको देखकर लोग कहें यार कैसा लिबास है, इसको देखने को दिल नहीं कर रहा। और यकीन करो अल्लाह की ज़ात हिफाजत करेगी। अगर हम किसी की माँ बहन बेटी की हिफाजत करेंगे ना मेरे भाई लोग, अगर हम किसी की माँ बहन बेटी की हिफाजत करेंगे, अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैं फरिश्ते भेजकर तेरी माँ बहन बेटी की हिफाजत करूँगा। तू किसी की माँ बेटी को 10 लोगों से बचाएगा, फर्ज कर तू नहीं बचाने के लायक, तू मार खाएगा, वो पीटेंगे तुझे, लेकिन फरिश्ते का मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता। जब तेरी माँ बहन बेटी पर हमला होगा तो अल्लाह फरिश्ते भेजेगा कि जा इसने फलां की माँ बहन को बचाया, तो फरिश्ते भेजकर मैं उसकी हिफाजत फरमाऊंगा। तो मेहरबानी फरमा कर मेरे भाई लोग, ये फरकान भाई हैं, इनका मतलब है कि इनका मकसद ये है कि लोगों को ऐसी तालीम दी जाए जिसके अंदर आने वाले वक्त में फ़ायदा हो। फाशी और बेहयाई की वीडियो तो सब बनाते हैं, लेकिन इनका ये जो तरीक़ाकार है बहुत अच्छा लगा और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा लगा, और इन्होंने हमें मौका दिया। और आगे भी इंशाल्लाह ये आपको अच्छी वीडियो से मुतारफ़ कराएंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये चैनल भी पसंद आए और आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको मज़ीद आने वाले वक्त में और आने वाली मतलब है कि नस्ल के बारे में मज़ीद आपको बातें बताई जाएँ। ये जो कमेंट करते हैं ना भाई लोग नीचे, भी आप खुद नमाजी परहेज़ी बने, ठीक है हम गलत होंगे, लेकिन भाई जुम्मे वाले दिन मस्जिद में जाओगे ना, सारी बात को मौलवी की मत सुनो, एक ऐसा नुक्ता उसके अंदर से निकाल लो कि जो आपकी ज़िंदगी को बदल सके। आपके अंदर एक ऐसी खामी है, उसको ख़त्म करो, खूबी पैदा करो उसकी जगह। हर जुमे के अंदर एक भी बात आप नोट करते जाएंगे ना, आने वाले वक्त में आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, आपके अंदर इम्प्रूव होएगा कि आपने काफ़ी अल्लाह की राह में चले हैं। इसी तरह आप हमारी वीडियो देखेंगे, ज़्यादा बातें नहीं सुनो, कम से कम एक बात सुन लो, अपनी नज़र की हिफाजत कर लो। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है आप हमारा साथ देंगे, इस चैनल को मोनेटाइज करेंगे, मतलब आगे लेकर जाएंगे, आगे लोगों तक इस तालीम को पहुंचाएंगे। तो इंशाल्लाह आप अगर आपके पास कोई ऐसी बात है, कोई अच्छी बात है, तो हमें आप बताएं, हम उसको भी लोगों के सामने शेयर करेंगे। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। जी उस्मान भाई ने बहुत अच्छी बात बताई, बहुत ही अच्छी वजाहत की कि देख लें आप कुरान पाक के जैसे ग़िलाफ़ है तो उसकी हिफाजत ग़िलाफ़ में कितना प्यारा लगता है। मतलब कि एक औरत जो कह देती है ना कि लोगों की नज़रें गलत हैं, हमें वो लोग देखते हैं, तो देखो यार तुमने लिबास कैसा पहना हुआ है, और ये लोग आप उसको देख के उस औरत को ये ना देखे वो बड़ी खूबसूरत है। यार आप अपनी वाइफ पे, अपनी बहनों पे फ़ख्र करें कि वो पर्दे में है, क्योंकि वो एक नेक औरत है। और ये जो बाहर हैं ये लानत लोग हैं, लानती लोग हैं, अल्लाह ताला ने इन पे बहुत गंदी लानत है इन पे। अच्छा फरकान भाई, आपको ना मैं माजरत चाहता हूँ आपकी बात को। अभी देखो सबसे बड़ी मिसाल देखो, अगर हम ये ऐसे समझो कि ठीक है मैं भी बीच हूँ, जैसे समझो कि आपके इर्द गिर्द सारे कुत्ते हैं, और कुत्ते भूखे कुत्ते हैं, इज्जत के भूखे कुत्ते, और सेंटर में इन कुत्तों के सामने एक बोटी रखी गई है जिसको ये नोच कर खाएंगे। अगर वही बोटी हम किसी कपड़े के अंदर लपेट कर, उसको कागज के अंदर लपेट कर रखें, कुत्ते देखेंगे नहीं, उसके गिर्द से चले जाएंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलेगा ये बोटी क्या चीज़ है। उनको यही पता चलेगा ये पता नहीं क्या चीज़ है, कोई गंदगी है या मेरे खाने की चीज़ नहीं है, वो पास से गुजरेंगे। अगर उनको सामने रखेंगे, दूर से कुत्ते को खुशबू आएगी और वो खींचेंगे, नोचेंगे। इसी तरह औरत का जिस्म है, अगर वो उसको नुमाइश करेगी तो सब देखेंगे यार कैसा जिस्म है, क्या है। अगर उसको ढका होगा, उसके ऊपर कपड़ा होगा, तो कोई भी नहीं देखेगा। यही बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा इरशाद फरमाया था कि ये जो औरत ये परफ्यूम लगा के खुद को बड़ा बना संवार के बाहर लेके जाती है और ये मर्द को जना की दावत देती है। आप देखें, जब जैसे उस्मान भाई ने बताया कि आप खुद को ढांक के चलें, नज़र आपकी खुद ब खुद साफ होगी। जब आपने खुद को ढांक के चलना ही नहीं है तो आपकी नज़र भी गंदी होगी, ठीक है। और ये बड़ी गलत चीज़ है, ये हमारे इस्लाम में बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं है।
تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہوں گی. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو یہ کڑوی لگی ہوگی, ہاں کیونکہ یہ سچ ہے, سچ کڑوا ہوتا ہے. تو آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں.